Happy 74th Independence Day greetings to all dear IBPC members and our distinguished guests joining from around the world. Truly many, many happy returns of this day, important day. And we had a tremendous talk this morning with the Indian Prime Minister giving a clarion call for Atmanirbhar, which is not just self-sufficiency as it is literally translated, but really reflects a commitment to sustainable development goals. Sustainable development goals, or SDG as they're called, is a United Nations Charter framework. And India has been committing itself to attaining the accomplishments that are necessary for achieving sustainability. So Atmanirbhar is really all about sustainability and progress, tremendous progress as it has made in terms of significant achievements to date. Last year, we celebrated the year of the 100th anniversary of Mahatma Gandhi ji. And very rightly, by October, India built on its Swachh Bharat program in such a manner that we covered 600,000 villages across the country, which is, I think, a tremendous achievement. And so there is sanitation for everyone in the country, which I think is an accomplishment to be proud of. Similarly, more recently, as you're aware, the Government of India announced the National Education Policy, which envisages education, especially at the primary, secondary school levels, in terms of quality, modern methods of teaching, raising the standards across the country. And recently, in fact, last week, IBPC had a webinar on this subject. So an excellent panel discussion was held just last week. So I think the country has been building over its 73 years since independence in terms of specific sustainable development goals. We had announced food security program, which is the largest of its kind in the world. It covers over 800 million Indians. It was launched in March this year, and it is to continue until November this year. So tremendous program again. And focusing again on food security, which is dear not only to India, but also to the UAE. Every country, especially those that are depending on food imports, are relying or expecting to secure food supplies. India has positioned itself well. There is an announcement of an agricultural infrastructure fund to the tune of $14 billion. All of these are not just investments. They're investments in the future. They create opportunities. They create both business opportunities and opportunities for professionals to raise the bar, as it were. And that's what the real meaning and the translation of independence and Atmanirbhar are all about. India has achieved gender parity in terms of elementary and secondary education. Nearly 700 million women under the Livelihood Mission work across rural India. So all of these are indicative of the potential. It's a country of 1.3 billion people. We have 400 million Jan Dhan accounts. So the prosperity, therefore, is being pushed down to the last mile, the last man, the last woman across the nation. We have also reduced, as part of the Sustainable Development Goals, carbon emission. So our annual reduction last year was 38 million tons of carbon emission. And we are looking to provide cooking gas, create renewable energy, more than 450 gigawatts, and 20 million hectares of degraded land by 2020, this year. So I think there is, the country is in a mission mode. There is strong leadership across various sectors, at the political leadership at the top in India. And this augurs well.
as IBPC and we rededicate ourselves to India's strategic goals, India's strategic initiatives and agenda, and align it also with UAE's very close strategic cooperation with India. So on this basis, I remain positive. We have had challenges of COVID-19, which the UAE has successfully overcome. There are significant lessons and learnings to be transferred. And India is picking up very quickly. It's a much larger country, much larger country. And therefore, the challenge is being dealt with. And the Prime Minister has clearly declared that we will win this war against COVID-19. So on that note, dear members and distinguished guests, let me wish you all Jai Hind. And once again, many happy returns of the Independence Day greetings. Thank you. हमारे देश के स्वतंत्रता दिन का कार्यक्रम आप बड़े उत्साह के साथ मना रहे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। इस समय हम कोविड-19 के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, पर मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये संकट केवल हमारे ऊपर आया है ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया के ऊपर आया है और निश्चित रूप से वैक्सीन जल्दी ही मिल जाएगा और हम सबको इसमें से बाहर निकलने की एक अच्छा अवसर भी प्राप्त होगा। जहाँ तक संकटों की बात है, हमारे देश ने 47 के पहले और बाद में भी अनेक संकटों का सामना किया है। हम आतंकवाद से इतने दिनों तक लड़े हैं, नक्सलवाद से लड़े हैं और हमने इसमें सफलता भी हासिल की है। नेचुरल कैलामिटीज़ में कितनी बार हमारे देश पर संकट आए, कहीं भूकंप का आया, बाढ़ का आया, प्रकोप हुए, बादल फटे, फिर भी हमने इस संकटों पर बात की है। यही हमारे देश का इतिहास है। आज हम आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी कठिन स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं, पर इंडिया ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और मेरा विश्वास है कि ये संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में बदलने की हमारी क्षमता है। हमारे देश में हम निश्चित रूप से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कम करेंगे और देश की वेल्थ को बढ़ाकर देश के विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाएंगे और हम बड़े तेजी से काम से लगे हैं। अब देश में काफ़ी बातें उद्योग व्यापार की नियमित होना शुरू हो गया है। रेलवे, एविएशन, ट्रांसपोर्ट अभी जितने मात्रा में उतना शुरू नहीं हो पाया है, पर वो भी शुरू हो जाएगा। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है हमारी कोविड-19 की, वो भी हम जीतेंगे और आर्थिक लड़ाई भी जीतकर प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, निश्चित रूप से हम इसमें यशस्वी होंगे। आप सब लोगों से भी मुझे बहुत बहुत विश्वास है कि कठिन स्थिति में आप वहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं। भारत के लिए आपका प्रेम और एक समर्पित भाव, ये हम सब के लिए अभिमान का विषय है और निश्चित रूप से बाहर गए हुए लोग देश के लिए काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज भी मिला कर देते हैं। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि एमएसएमई में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनबीएफसीज में, स्टॉक मार्केट के थ्रू आप निश्चित रूप से भारत में इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए भारत ये सबसे सुरक्षित जगह है और सबसे अच्छे रिटर्न्स है। मेरा विश्वास है कि हमारा देश इन संकटों का जो ये टेम्पररी फेज है इस पर मात करके आगे जाएगा और निश्चित रूप से दुनिया की एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा। स्वतंत्रता दिन, जिस दिन हम याद करते हैं कि देश के लिए कुर्बानी देने वाले महापुरुष, स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक, क्रांतिकारक और देशभक्त, उन्होंने अपनी जान को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। ये जो स्वाधीनता हमको मिली है, ये परिश्रम से, त्याग से, बलिदान से मिली हुई है और स्वतंत्र तो मिला है, स्वाधीनता तो मिली है, पर इसका रूपांतर सुराज्य में करना, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान में करना, यही हमारा मिशन है और मेरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम इसमें कामयाब होंगे। और इसीलिए मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता आज याद आ रही है कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। चाहे आप दुबई में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, हम सब भारतीयों को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हम होंगे कामयाब। इसी स्पिरिट के साथ हम पॉजिटिविटी को बढ़ाएं,
निगेटिविटी, निराशा, फ्रस्ट्रेशन को छोड़ दें और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कोविड-19 पर भी मात करेंगे और इकोनॉमिक लड़ाई भी जीतेंगे और हम आगे जाएंगे। इस दृढ़ विश्वास का संकल्प करिए। आज के इस स्वाधीनता के दिन के उपलक्ष्य में यही मेरा आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध है। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, कोविड से बच के रहिए और आपका स्वास्थ्य अच्छा रखिए। इसलिए मेरी दिल से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। Well, as you heard the President's remarks, he spoke about the difficult time the world is facing, and I think we have ourselves been facing the same thing here, not just amongst ourselves in the mission here, but I think as the larger community with a huge diaspora, one of the largest in the world. We've certainly been seeing the brunt that they have taken, particularly amongst the more disadvantaged sections of society. But I want to start by thanking all of you, including your families, for the efforts that you have made in these last 4.5 months in keeping the mission functioning, in doing a great job, in reaching out to people in all sections of society through the help of community associations, but certainly with all the efforts that you've made looking after people. We have reached out to people in the initial stages to provide them help to get access to health facilities, to give them into isolation facilities, with making sure that they get food if they didn't have that, and working with the community associations, who I also want to thank, who have also done a lot of work on their own, supporting us in every way possible. I must say that when we started the whole repatriation program on the 7th of May, it was also a gigantic, massive task. And here again, we found that when we needed the help of the community, we got volunteers who came and sat in these very areas and sat and did calling up of people to identify those amongst the most needing to go back to India, to make sure that they are able to go back. So I think everybody has put in a great effort, and I want to thank all of you for this, and as I said, our community in general and at large, who have contributed in a very special way. I also want to thank the UAE government and their health authorities for the support they have provided us in making this effort successful. You will be pleased to know that as of date, we have sent back more than 325,000 Indians back to India in just little over 3 months. And I think maybe mostly now all the people who really were keen to go back have gone back. We've gone through various phases. At times when we were running the entire operations of repatriation, from being at the airport, organizing all this flight manifests, to making sure that people can actually get access to wherever they need to. From then, we moved on to a situation where we started allowing some amount of bookings to happen directly with Air India, and now we are at a stage where we've got an air bubble between India and the UAE, and now tickets can be booked by anyone who's wanting to go, and the facilities for people have been made simpler. The number of people who are able to go is also much more. In the middle, we also faced problems of many of our Indians stuck in India whose family members were here and they were wanting to come back, but there were still restrictions on them. We worked with the UAE authorities and the UAE government to ensure that this was possible. We had a trial run for 2 weeks from July 12th to 25th, when we got in about 25,000 Indians coming back on planes which were coming to pick up people to take them back to India. And now again with this air bubble, we've got opened up much more of two-way traffic. So many more people, all Indians with any valid visa for the UAE, can now come back and reunite with their families or get on with their livelihoods or their work here. So we are moving to a stage of slightly greater normality, but it's still within courts. We are still so few here today. Under normal circumstances, we would have had hundreds of our fellow Indian citizens with us joining us on this occasion. Unfortunately, we have to do that today through the medium of technology. You heard what the President said about science and technology. We are having to use these new means to communicate, to interact, but to keep things going. And I'm sure that we will get over this and we will get back to some greater sense of interaction in a more normal sense. But till then, we have to keep with this effort and make sure that we do the best we can in these circumstances. Even in these times, I have to say that we have kept up with our bilateral momentum. Not only did we coordinate and cooperate very well with the UAE government during the pandemic, we actually sent them medicines when they were required. We've sent them almost 400 health workers and doctors to come and boost their healthcare system.
We also got some nice help from them in the form of masks and PPEs and medical assistance. So we've kept this interaction going through this period. We've cooperated in the health sector. We've also had our communication at the highest level. Our Prime Minister has been in touch with the Crown Prince of Abu Dhabi. We've had our Foreign Minister interacting and speaking with the Foreign Minister, His Highness Sheikh Abdullah. There is in fact very active bilateral engagement on this week, and on Monday again the two foreign ministers will be having a formal meeting. They had a good meeting on June 8th. They'll be having another important meeting on Monday the 17th of August. So this engagement and exchanges are continuing. We are hopefully going to see some exchanges in the sporting sector with the IPL coming to the UAE because of the restrictions in India. So we are looking at new ways in which we can cooperate with the UAE even in these times as we take along our bilateral agenda. I want to again thank you all for being here. I want to thank all of our Indian citizens who are watching this on their phones or on their computers to try and feel a sense of participation. And I hope that we will very soon be able to see you all in person and participate in such events together. Thank you very much. Jai Hind. Namaste and Salam Alaikum. Dear Chairman, members of Governing Council, Executive Committee members and conveners, and fellow IBPC members. I would like to take this opportunity to wish you all a very happy Independence Day. आप सबको भारत की 74वीं स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां. On this August day, let us not forget all our forefathers who sacrificed so that we could breathe fresh air of freedom, joy, and happiness. Let us work together to strengthen IBPC so that we can continue to promote Indian and UAE businesses and professionals and collaborate even more than before. On behalf of IBPC, I would like to take this opportunity to express our sincere thanks and gratitude to Sri Nitin Gadkari ji, the Union Cabinet Minister of India, and Indian Ambassador to UAE, His Excellency Sri Pawan Kapoor ji, for their warm wishes on this August day. At this point, we have organized a musical program, and for that I would like to welcome Somdat Basu and Jayaprasad Ganpati, who are from a musical group called Symphony Sargam. Both of them are music teachers, and besides that, they teach young students, impart them with music, dance, and cultural aspects to better their future lives and improve their skills in cultural things. Before I hand over, I wanted to say something to all of you, coming from the heart. सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा. Thank you and Jai Hind. सस्य श्यामलां मातरं वन्दे
हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मैं हूं तरन्नुम और आईपीपीसी की तरफ से आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूं और खासतौर से जो गवर्नेंस बॉडी है आईपीपीसी की, गवर्नेंस बोर्ड ऑफ आईपीपीसी, वी आर ग्रेटफुल टू यू, चेयरमैन मिस्टर सुरेश कुमार, सेक्रेटरी जनरल मिस्टर दिलीप सिन्हा and the entire team for giving us Symphony Sargam the opportunity to host this event on the occasion of Indian Independence Day. Thank you so much. Symphony Sargam is the brainchild of Miss Somdatta Basu. Under the able guidance of Somdatta Basu, it's a cultural endeavor that encourages students to perform and follow their passion of music and dance with dedication and discipline. सोमदत्ता साहिबा 2006 से दुबई में मुकीम है और गायकी और नृत्य दोनों ही कलाओं में महारत हासिल है इनको। ये कथक में नेशनल स्कॉलर हैं और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज साहब और गुरु संतोष महाराज इनके उस्ताद हैं। और गायकी में ये विदुषी सिप्रा बोस की शागिर्दा हैं जो कि खुद बेगम अख्तर की शिष्या रही हैं। कई मुल्कों में सोमदत्ता जी ने कॉन्सर्ट्स किए हैं, जी टीवी, मिडिल ईस्ट, सारेगामापा चैलेंज और वॉइस ऑफ दुबई की विनर रह चुकी हैं। और अब ये धरोहर तकरीबन 100 से ज़्यादा शिष्यों को, स्टूडेंट्स को पास ऑन कर चुकी हैं। इन्होंने बंगाली टीवी सीरीज और फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी की है और अब इसी तरह के कॉम्पिटिशन्स जिनमें ये खुद कभी विजेता थी उनको जज करने के लिए इनको इन्वाइट किया जाता है। उनके साथ हैं जनाब जयप्रसाद गणपति, जिनको म्यूजिक फ्रेटर्निटी में सब लोग जेपी के नाम से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। जेपी इज़ अ ग्रेडेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में श्री सिद्धाराम स्वामी कोरवार जी से और गज़ल और लाइट म्यूजिक में श्रीमती कीर्ति सूद साहिबा से तालीम हासिल की है। ये भी जी मिडिल ईस्ट, सारेगामापा चैलेंज और वॉइस ऑफ दुबई के विजेता रहे हैं। इन्होंने यहाँ यूएई में सुनीति चौहान, शंकर महादेवन, के महालक्ष्मी अय्यर और ऐसे बहुत नामवर सिंगर्स के साथ परफॉर्म किया है। तो आज की हमारी महफिल में कोशिश ये है कि जो हम जश्न मना रहे हैं आज़ादी का, उसमें बातें तो ज़ाहिर होती हैं, लेकिन किसी भी जज्बे को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा फॉर्म पोइट्री होता है या फिर नृत्य होता है। तो थोड़ी पोइट्री होगी, थोड़ी बातें होंगी। ख़ासतौर से जो हम लोग मुल्कों से दूर हैं, यहाँ पे हैं जहाँ पे हर त्यौहार, हर तीज, हर होली, दिवाली, ईद पे अपने मुल्क से दूर होने का एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी हमें भारत प्यारा है क्योंकि भारत देश हमारा है, चाहे हम कहीं भी रहें। भारत देश के प्रेमी हैं हम, भारत देश हमारा है, इसका मान रखेंगे ऊंचा, यही हमारा नारा है। प्रेम ही दौलत है भारत की, प्रेम ही प्रेम लुटाओ, प्रेम ही ओढ़ो, प्रेम बिछाओ, प्रेम की सेज सजाओ, प्रेम के साज उठाओ यारो, प्रेम के गीत सुनाओ, प्रेम ही प्रेम और अक्सा जिसमें ऐसी बज़्म सजाओ। भारत हमको प्यारा है, हम जैसे इंसानों के बस यही एक सहारा है। भारत देश के प्रेमी हैं हम, भारत देश हमारा है। तो हम जैसे भारत के रहने वालों को जो अपनी मातृभूमि से दूर हैं, किस तरह वतन याद आता है, आइए वो सुनते हैं जेपी की आवाज में। तुझ पे दिल कुर्बान।
तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान। छोड़कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम। छोड़कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे दर्दों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। Thank you. ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। और दिल कुर्बान हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारा जो ये चमन है उसमें जिस तरह के इंद्रधनुष से रंग हैं, चाहे आप तीज त्यौहार देख लें या लैंडस्केप देख लें, नदी नहर पहाड़ रेगिस्तान खेत खलिहान, इतनी खूबसूरती है। और इन चीज़ों की याद तब ज़्यादा आती है जब हम वतन से दूर होते हैं, जैसे कि आज हमारे मुल्क के हिंदुस्तान की खूबसूरती और अलग अलग त्योहारों और कल्चर का जिक्र एक शायर ने किस तरह किया है। वो कहते हैं, ये है मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार है मुझको। हंसता गाता जीवन इसका धूम मचाता मौसम, गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों की सरगम। ये है मेरा हिंदुस्तान। अलबेला पंजाब है इसका रूमानों की बस्ती, सुबह बनारस शाम अवध और शालीमार की मस्ती। बम्बई जैसे शहर हैं इसमें दिल्ली जैसी बस्ती। ये है मेरा हिंदुस्तान। गालिब और टैगोर यहीं के, मीरा कालीदास यहीं हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास। यहीं किया था सात राम के सीता ने वनवास। ये है मेरा हिंदुस्तान। मंदिर मस्जिद हैं तो कहाँ गिरजारे शिवालय, मुल्ला पंडित गीता और कुरान के मतवाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के सब रखवाले। ये है मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहान। ये है मेरा हिंदुस्तान। अब जब हम यहाँ हैं तो उन मौसमों का,
उन बदलती हुई ऋतुओं का हम मज़ा नहीं ले पाते, लेकिन हमें याद ज़रूर आती है कि जब हम विदेश में हैं तो देश में चांद निकला होगा तो क्या खूबसूरत मंजर होगा। आइए सुनते हैं सोमदत्ता जी की आवाज़ में। हम तो हैं परदेसी
बहुत खूब। और वाकई अपने देश में चांद निकलने का भी अलग ही लुत्फ है। वहाँ 2 चांद तो बहुत ही दीवानगी से लोग इंतज़ार करते हैं। एक तो जब व्रत रखते हैं करवा चौथ पे तब, और एक ईद का चांद। और जिस तरह आंगन के नीम के पेड़ पे चांद हिंदुस्तान में अटकता होगा, शायद ही किसी मुल्क में खूबसूरती चांद की भी हो। खैर, जो मुल्क इतना खूबसूरत है, जिसकी आज़ादी इतनी मुश्किलें और मुसीबतें झेल के हमारे पूर्वजों ने हासिल की, उसको बचाना और उस आज़ादी का न सिर्फ जश्न मनाना बल्कि उसे सुरक्षित रखना हम सबका फ़र्ज़ है। देखिए, भारत हमारी मातृभूमि हमें क्या कहता है और क्या पैगाम देता है। ऐ मेरे आशिकों, ऐ मेरे आशिकों, एक निवेदन है मेरा तुम्हीं से सुनो। 100 बरस मुझको आधीन रखा गया, लबकशानी का भी मुझको कुछ हक न था। शाह जफर रानी झांसी का ये त्याग है, आखिरश जो गुलामी से पीछा छुटा। ऐ मेरे आशिकों, ऐ मेरे आशिकों, सब बुजुर्गों की मेहनत का है ये सिला, जो कि आज़ाद भारत तुम्हारा हुआ। उनकी कुर्बानियों को गंवाना नहीं, रखना कायम हमेशा ये स्वतंत्रता। ऐ मेरे आशिकों, ऐ मेरे आशिकों, ये हमारी मातृभूमि का पैगाम है हम सबको, क्योंकि ये एक ऐसी सरजमीन है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की, होली के कहीं मेले, कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं है मेले, होली के कहीं मेले, जहाँ रंग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत खूब जेपी जी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और वाकई में ये भारत देश जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, इतनी खूबसूरत, हर लिहाज से इतनी हर चीज़ से सजी हुई कि क्यों ना हर एक की नज़र उस पर रही हो और क्यों ना हर एक ने नज़र लगा के उसे हासिल करने की कोशिश की। कई सौ साल जद्दोजहद रही, उसके बाद हमें आज़ादी मिली। और उस आज़ादी में न सिर्फ वो सिपाही, वो फौजी जो कि सरहदों पे अपनी जान समर्पित कर देते हैं देश की रक्षा करने में, बल्कि उनका जो पूरा ख़ानदान होता है वो हिस्सेदार होते हैं उनके बलिदान में। तो एक कवि का ख्याल देखिए कि वो इन सैनिकों को कितना रिस्पेक्ट और कितना आदर देता है कि वो इन सैनिकों के कदमों में बिछे जाने को तैयार है। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाके पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पद पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो ये सलाम है और ये प्रणाम है हम सब की तरफ से, ना सिर्फ उन फौजियों को बल्कि उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनके बीवी बच्चे जो कि सब त्याग देते हैं। जहाँ एक फौजी त्याग देता है वहाँ पूरा ख़ानदान उस एक फौजी का देश के लिए त्याग देता है। आइए उन सब की कुर्बानियाँ याद करें, उन्हें सलाम पेश करें, नमन करें उन फौजियों को मिलकर। मेरे वतन के लोगों
सरबत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। वाह सोमदत्ता जी, ये जज्बात हम कोई भी अल्फाज उठा लें, बात करने के तरीके में नहीं एक्सप्रेस हो सकते, जो कि शायरी या कविता के ज़रिए कोई भी इमोशन हो, चाहे देशभक्ति, चाहे मोहब्बत, चाहे दोस्ती, शायरी और गीत के बढ़कर कोई शायद तरीका नहीं है अपने जज्बात जाहिर करने का। तो ये जो फौजी हैं, इनका बलिदान सिर्फ तब नहीं नज़र में आता है या मानना चाहिए जब वो शहीद हो जाएं। जब एक बार एक फौजी वो वर्दी पहन लेता है जिसको वो अपनी जान से ज़्यादा इज्जत देता है और हिफाजत करता है, उसका बलिदान, उसके ख़ानदान का बलिदान, फैमिली का बलिदान वहीं शुरू हो जाता है। हम लोग एक त्यौहार अपने घर से दूर मनाएं, बहुत अजीब लगता है। वो लोग चले जाते हैं, कोई त्यौहार हो, बहन की शादी हो, पिता का निधन हो गया हो, उनकी अर्थी को कांधा नहीं दे सकते, शादी हो जाए बीवी को छोड़ के आ जाते हैं, बच्चा होता है, सालों उसकी शक्ल नहीं देख पाते और ये पता भी नहीं होता कि देख भी पाएंगे कभी या नहीं देख पाएंगे, या अपने भाई को देख पाएंगे या बहन की ससुराल जा पाएंगे। कितने रिश्ते एक सैनिक छोड़ के सरहद पे जाता है, एक रिश्ता निभाने, वो अपने देश के साथ जो वो जोड़ता है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत अहम होती है जो उन्हें बांधे रखती है, वो जो संदेशे अपने घर भेजते हैं और जो उनके घर वाले संदेशे उनके लिए भेजते हैं, उनकी कितनी अहमियत है और कितनी खूबसूरती है उन संदेशों की। आइए सुनते हैं जेपी की आवाज़ में। तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों की, वो चिंता बातों की, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ।
के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। को सलाम दे। मेरे गाँव में है वो जो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल में गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो भी निभाऊँगा। मैं एक दिन आऊँगा, 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 मैं एक दिन आऊँगा। बहुत खूब जेपी साहब, थैंक यू सो मच। मैं एक दिन आऊँगा। इस एक गीत में आपने कितने रिश्तों के, कितने जज्बात और कितने रिश्तों के ताने बाने सुन लिए, माँ, दोस्त, माशूका, भाई, महबूब, सब। तो ये ज़िंदगी है उन लोगों की जिनकी बदौलत हमने आज जो हम जश्न मना रहे हैं, जिस आज़ादी का वो पाई। तो जो चीज़ इतनी मुश्किल से मिली हो उसको हम गंवाने का तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं। तो एक और इसी तरह का कलाम देखें कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आज़ादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर ये दौलत पाई है, मुस्कुराकर खाई हैं सीनों पे अपने गोलियाँ, कितने वीरानों से गुजरी हैं तो जन्नत पाई है। खाक में अपनी इज्जत को मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और यही जज्बा हर उस भूमि के चाहने वाले का होता है जो ये सोचता है कि वो वहाँ की मिट्टी में समा जाए, या वहाँ की नदियाँ और नहरों के साथ बह निकले, या वहाँ के खेत खलियानों में खिल उठे। सुंदरता जी।
जिस्मों से निकल के खून कहे आए, तेरे मिट्टी में गुल बन की मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत खूब। यह जज्बा कि अपनी मातृभूमि की मिट्टी में मिल जाएं, उन सभी शहीदों का रहा होगा जिन्होंने ये आज़ादी जीती, जिसका हम जश्न मनाते हैं साल हर साल 1947 से आज तक। और रब जो है ये जश्न हमारा कायम रखे। लेकिन वो लोग जो हमें जिम्मेदारी दे कर गए हैं, उन्होंने अपनी जान फिदा कर दी हमें आज़ादी देने पर। वो हमें एक जिम्मेदारी दे कर गए हैं। वो ये कह कर गए हैं कि कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा वाक़फ़ुन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
कुर्बानियों की न वीरान हो। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आना पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह जेपी साहब। तो जब हमारे हवाले वतन देकर वो शहीद जा चुके हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक साथ मिलकर उसकी इज्जत की, उसकी अजमत की हिफाजत करें और दुआ करें रब से कि हम लोगों को सबको सम्मति दे, एक साथ रखे, एकजुट रखे, ताकि हमारे मुल्क की तरफ कोई भी गलत नज़र उठा के ना देख पाए। आइए इस दुआ को सुनते हैं सोमदत्ता जी के साथ।
बल देने वाले, बलवानों को दे दे ज्ञान। आइए हम सब हाथ जोड़कर इस बात पे आमीन कहें। इतनी खूबसूरत प्रार्थना इतने खूबसूरत अंदाज में सुंदरता जी ने पेश की है। ये कुछ ऐसे कलाम हैं, ऐसे गीत हैं कि गाने वाले का तो गला रूंध ही जाता है और मेरे ख्याल से सुनने वालों की भी सबकी कैफियत कुछ बहुत भारी हो जाती है। आज की इस जो हमने यौम आज़ादी की महफिल सजाई है, उसकी आखिरी पेशकश की तरफ बढ़ते हैं। आज हम सब शाद हैं, अपना वतन आज़ाद है। हम हैं बुलबुल जिस चमन के, वो चमन आज़ाद है। आज वो दिन है, हुई थी देश की जनता की जीत। आज ही के दिन चली थी इसमें आज़ादी की रीत। अज़्म है ये जानो दिल से देश की खिदमत करें। अमन आज़ादी का हम पैगाम दुनिया को सुनाएं। देश की अपने बड़ाई अपने कामों से दिखाएं। फ़र्ज़ अपना हम करें दिल से अदा और जान से। हो वफ़ादारी हमारी अपने हिंदुस्तान से। क्योंकि हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। पर्वत हो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारे, वो पासवा हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा। On this note, I would once again like to take this opportunity to thank the Governance Board of IBPC, Chairman Mr. Suresh Kumar, Secretary General Mr. Dilip Sinha, and the entire team for giving us Symphony Sargam to host this Independence Day celebration. Thank you so much. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। Dad, see what I've made!
Wow, that looks like our new home, huh? It's as simple as this to make your dream home come true with Bank of Baroda. Easy home loans in UAE and India with simple procedures, quick approvals and low interest rates. Dad, let's go for a drive in a new car. Let's go! Drive your dream car with Bank of Baroda. Speedy car loans at low interest rates. Imagine it and it can be yours. Bank of Baroda, India's international bank.